السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 21 سورت السجدہ۔ تلاوت ہوگی، آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I'm playing the tilawat. شمیل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق اللہ العظیم. Over to Shamim for sharing the hadith.
جی پہلی حدیث ہے، آج ہم سورہ سجدہ آیت 22 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث میں پڑھتی ہوں۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever performs wuzu well, then says the following, then 8 gates of paradise will be opened for him, and he may enter through whichever one he wishes. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اس کا میننگ ہے، یا اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کو ملو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو۔ یہ سارے عمل کرنے سے تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حدیث ہوا۔ راب بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو اور ضروریات کے لیے پانی لاتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے کہا مجھے بس یہی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے، یعنی زیادہ نماز پڑھ کر میری مدد کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چھاپ آواز سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، میں تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کرتا تو میں اس وضو کے نفلی نماز پڑھتا رہا جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے اعلیٰ اخلاق سے سارے دن کے روزدار اور سارے رات کی تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ میزان اعمال میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ میں اس شخص کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق اعلیٰ یعنی بہت اچھا ہو۔ جزاک اللہ خیرہ شمیم فار شیئرنگ دی حدیث۔ ابھی اس میں سے کس کو کون سی حدیث اچھی لگی اور کس پہ عمل کرنا آسان ہے، ذرا بتائیں۔ باجی مجھے وضو بہت ثنا، اچھا لگی۔ یس کشور۔ باجی مجھے وضو والی کافی اچھی لگی اور وہ آسان بھی ہے۔ اوکے، کیا کرنا ہے اس میں؟ باجی مجھے وضو کے بعد وہ کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو ویری انشاءاللہ گڈ، جب کہ کوئی بھی گیٹ میں سے انٹری مل جائے گی۔ ویری گڈ، الحمدللہ۔
तो ऐसे मस्त शॉर्टकट्स हम लोग को अच्छे लगते हैं ना। चलिए, नो प्रॉब्लम। जब अल्लाह ने हमारे लिए ये सहूलत रखी है तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। लेकिन जरा सोचिए कि ये करने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होगा किशोर? मतलब अच्छे से वजू करेंगे, वजू पूरे सब राइट वजू हाँ, करेंगे, वजू करेंगे, दैट मीन्स नमाज पढ़ने की नियत है। नमाज पढ़ने तो की वजू नियत भी है। किया, और वजू करके अपने ईमान को रिफ्रेश करने का होता है। ये जो हम कलमा पढ़ते हैं इसमें हम गवाही देते हैं। हम कहते हैं अल्लाह, आई बेयर विटनेस, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। दैट मीन्स आप फिर से प्रॉमिस कर देते हो कि मैं अल्लाह से तेरी इबादत करूंगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करूंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? आयत नंबर 21 तक। 21 से लेना है हमको। 21 भी हो गया था, 22 से लेंगे इंशाल्लाह। आयत 22, वमन अजलमु, वो और, मन कौन, मन कौन, अजलमु, इसमें जुल्म वर्ड तो आपको मिल रहा है, लेकिन शुरू में जब हमजा जबर अ आता है तो यहाँ पर उसका मीनिंग है सुपरलेटिव में, और कौन ज्यादा जालिम है, और कौन ज्यादा जालिम है, द हु इज मोर ऑप्रेसिव, किससे, मिमन दुक्किर, उससे जो, दुक्किर, जो याद दिलाया गया, जिसको याद दिलाया गया। क्या याद दिलाया गया? बी आयाती रब्बिही, उसके रब की आयात का जिक्र किया गया उसके सामने, उसे याद दिलाई गई कोई उसके रब की आयत। तुम्मा, फिर वो क्या करता है? तुम्मा, फिर अरद अनहा, फिर उसने एराज किया, इग्नोर किया, अनहा, अल्लाह की आयतों से। अल्लाह ताला फरमाते इससे बड़ा जालिम कौन होगा कि उसे जब अल्लाह की आयत याद दिलाई जाती है, अल्लाह की आयत के बारे में, आयत के बारे में जिक्र होता है, इसके बावजूद उसकी रिएक्शन क्या होती है? वो एराज बरतता है, दैट मीन्स वो इग्नोर करता है अल्लाह की आयत को। इन्ना, बेशक हम, अब अल्लाह ताला फरमाते अच्छा वो हमारी आयत को इग्नोर करता है तो हम क्या करेंगे उसके साथ? इन्ना, बेशक हम, मिनल मुजरिमीना, ऐसे मुजरिमों से, मुंतकिमून, इंतकाम लेने वाले हैं। मुंतकिमून में इंतकाम वर्ड मिलता है। इंतकाम का मतलब है बदला। तो ऐसे लोगों को पहले तो अल्लाह ने मुजरिम बुलाया। मुजरिम का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल, जिसने जुर्म किया हो, कोई क्राइम किया हो। और यहाँ पर उसका क्राइम क्या है कि उसे अल्लाह की आयत याद भी दिलाई जाती है, फिर भी वो कहता है आई डोंट केयर, मैं क्यों इसे फॉलो करूं, मैं तो अपनी मर्जी की करूंगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि किसे अल्लाह की आयत याद दिलाने की जरूरत पड़ती है? किसे जरूरत पड़ती है कि उसे अल्लाह की आयत याद दिलाई जाए? प्रीवियस भूलने क्लास में भूलने वाले को। वेरी गुड। जो अल्लाह की आयत को भूल गया हो, नंबर 1। नंबर 2, जानबूझकर उस पर अमल नहीं करना चाहता। इसके फिर प्रीवियस आयतों में हमने फासिक के बारे में पढ़े कि वो जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह के लिमिट्स के बाहर निकल जाता है, एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं नाफरमानी करने में। आपको याद है वो वाकया, आपको हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का मैंने सुनाया था कि उन्होंने एक नया फैसला, एक नया ऑर्डिनेंस पास करने वाले थे, तो उनको याद दिलाया उनकी कौम में से एक औरत ने कि अल्लाह की आयत में तो कभी भी अल्लाह ने ऐसे लिमिट नहीं किया है मेहर को
پھر آپ کیسے مہر کو لمٹ کر سکتے ہو؟ جیسے ان کو اللہ کی آیت یاد دلائی گئی انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اپنی غلطی مان لیے، بولے کہ میں غلط ہوں اور یہ عورت صحیح ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایکسپٹ کر لینا، تسلیم کر لینا۔ اور یہاں پر مجرم کس کو کہا گیا ہے؟ کہ اسے اللہ کی آیت یاد دلائی جائے پھر بھی وہ کیا کرے؟ وہ پراؤڈی بنے، اسے اگنور کرے، اللہ کے حکم کو نہ مانے، نہ لوٹے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا بلایا ہے؟ وچ نیم؟ بائی وچ نیم؟ مجرم، کرمنل۔ مجرم، کرمنل۔ اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، یعنی ان کے لیے پنشمنٹ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہے، وہ جانتا ہے اللہ کی آیت کو، پھر سے اسے یاد دلایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کافر کو پکڑ کر اور اسے اللہ کی آیت پڑھا کے سمجھا رہے ہو کہ نماز کا وقت ہے، تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، ارے تم شراب کا میں ڈیل کرتے ہو، ارے تم ربا میں ڈیل کرتے ہو، تم مسلمان ہوتے ہوئے غلط کام کرتے ہو، دھوکے بازی کرتے ہو۔ کیونکہ مسلمان تو کیا ہوتا ہے؟ ایماندار ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اوکے۔ قرآن پاک میں ایسی آیتیں آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت گزر چکی ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو مجھے بتائیے اپنے ورڈز میں بھی، کس کے بارے میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 1 میں یاد آ رہا ہے؟ ہنٹ دو آپ کو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اب یاد آیا؟ جی باجی، کیا یاد آیا؟ جو اللہ کے مسجد میں جانے سے روکے باجی۔ ہاں پڑھے تھے نا؟ تو تھوڑا سا بالکل الرٹ رہنا ہے، کان، آنکھ، دماغ، دل، جو پڑھ چکے ایٹ لیسٹ ان آیتوں کو تو بھولنا نہیں ہے نا۔ اوکے، سو سورہ از رائٹ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا تھا اور کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجد میں کسی کو انٹری کرنے سے روکے، وہاں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ اوکے، یہاں پہ اپنا یہ رکو کمپلیٹ ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں آیت 23 پر۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ آیت 23، وَلَقَدْ، اور، وہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور، لقد بے شک، تحقیق، ویریفائڈ۔ واٹ از ویریفائڈ؟ آتینا، عطا کی ہم نے۔ ہم کون ہے؟ ہم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور بے شک عطا کی ہم نے، یعنی اللہ نے، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا عطا کی؟ الکتاب، خاص کتاب۔ کون سی تھی وہ؟ آسمانی کتاب جو نازل کی گئی، عطا کی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، تورات۔ تورات۔ فلا، پھر نہیں، تکن، تم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب نازل کی تھی، دی تھی۔ فلا، پھر نہیں، تکن، تم ہو، فی مریتن، کسی شک میں، پھر نہیں پڑھو تم لوگ کسی شک میں، من لقائہ، ملاقات سے اس کی، پھر اللہ کی ملاقات کے بارے میں تم لوگ شک میں نہ پڑو۔ ڈو ناٹ ڈاؤٹ اباؤٹ دا میٹنگ وتھ اللہ۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے اس کو، کس کو؟ اس کتاب تورات کو، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، کس کے لیے تھی یہ کتاب تورات؟ ایز اے ہدایت، ایز اے گائیڈ، لیے
बनी इसराइल के। ली का मतलब क्या होता है? लिए। किसके लिए? बनी इसराइल के लिए। अब आप लोग को वर्ड टू वर्ड भी समझ में आता है या नहीं? ला का मतलब क्या होता है? ला का मतलब क्या होता है? नहीं, हाँ, और ली का मतलब? लिए। तो देखिए जबर और जेर से कितना फर्क पड़ जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और हम सीख रहे हैं वर्ड टू वर्ड। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले, आपको तो कुरान नाजिल हुआ है, आपसे पहले मूसा अलैहि सलाम को भी हमने तौरात अता की, वो भी अल्लाह की किताब। तो नहीं आप भी और ना आपके उम्मती शक में पड़े अल्लाह से मुलाकात की। अब यहाँ पे किताब और अल्लाह से मुलाकात, इसमें क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन नजर आ रहा है? बाजी दोनों भी अल्लाह की से वेरी related। गुड, आप भी वेरी अल्लाह। गुड, वेरी गुड। यानी अल्लाह हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा क्रिएटर, और उसने अपना मैसेज पहुंचाया अपनी किताब के जरिए। तो अल्लाह की किताब में क्या है? अल्लाह का पैगाम, द मैसेज ऑफ अल्लाह। और अल्लाह ने जिस नबी पर चाहा उस पर नाजिल किया, मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की ये किताब, और उसमें अपना मैसेज पहुंचाया लोगों के लिए। स्पेशली वो किताब थी बनी इसराइल के लिए। और उस किताब में अल्लाह ने अपनी मीटिंग स्केड्यूल कर दी, ये बता दिया कि तुम अपने रब को अभी नहीं देख पाओगे, ना मिल पाओगे। तुम अपने रब से कब मिल पाओगे, कब उससे मुलाकात होगी, और ये मुलाकात होनी ही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अल्लाह से तो मुलाकात करनी ही पड़ेगी, और वो होगी चाहे तुम चाहो या ना चाहो। और इसीलिए इस बारे में किसी को भी शक में नहीं पड़ना है। यानी तौरात में भी लिखा था, और फिर किसमें लिखा है? इंजील में भी और कुरान में भी। ठीक है। और अल्लाह ने फरमाया हमने बना दिया इस किताब को बनी इसराइल के लिए गाइड बुक, गाइडेंस का जरिया। आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम से कभी मिले या नहीं मिले? मूसा अलैहिस्सलाम कौन से जमाने में आए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से जमाने में आए थे? क्या उन लोगों की कभी मुलाकात हुई है? बाजी हुई थी। कहाँ हुई थी, कब हुई थी सुरैया? मेराज पर हुई थी बाजी। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो नमाजें कम कराने बोले थे बाजी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई थी, और ईसा अलैहिस्सलाम से हुई थी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई थी। जी बाजी। यस। अच्छा सुरैया, ईसा अलैहिस्सलाम के कभी कोई फोटो या स्टैच्यूज देखे हो तुमने ईसा अलैहिस्सलाम के? कहाँ नजर आते? बाजी जो स्टैचू है वो वल्लाह आलम चर्च में है, वो वैसे है दिखते, पता नहीं चर्च में हाँ, देखा। उन लोग तो मानते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है ना? और कभी मूसा अलैहिस्सलाम का देखे हो कहीं? नहीं बाजी। नहीं। अच्छा सुरैया, ये ईसा अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा आपने जो स्टैचू देखे हो, तो थोड़ा सा आप मुझे उनको डिस्क्राइब कर सकते हो, किशोर या खदीजा या सुरैया, एनी बड़ी, शमीम? बाजी उनका लॉन्ग कर्ली हेयर्स थे, मैंने देखा है, हाँ। और अच्छे दिखने में हम्म। काफी अच्छे हैंडसम है, नाक खड़े वेरी हैं। गुड, वेरी गुड, यही सुनना था मुझे। जजाकल्ला खैरा किशोर। अब आप लोग सुनिए कि हदीस में हमें क्या मिलता है। हदीस में हमें मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज वाली रात मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम को देखा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को देखा,
अब इनका डिस्क्रिप्शन बता रहे हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे थे मूसा अलैहिस्सलाम? वो थे गुंदमी रंग के, गुंदमी रंग यानी व्हीटिश स्किन, ना बहुत गोरे ना बहुत सावले, लंबे कद के, ही वॉज टॉल, घुंघरियाली बालों वाले। कैसे थे मूसा अलैहिस्सलाम? विथ कर्ली हेयर, टॉल, एंड he had whitish complexion. फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी रात मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा। अभी ईसा अलैहिस्सलाम का सुनो, कैसे थे वो दरमियानी कद के, यानी मिडिल हाइट थी उनकी, मीडियम हाइट, नाइदर वेरी टॉल नॉट शॉर्ट। उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा था? सुर्ख और सफेद, यानी बहुत ही फेयर, यहाँ तक के वो रेडिश दिखते थे, फेयर एंड रेडिश कॉम्प्लेक्शन। और उनके बाल सीधे थे, स्ट्रेट। ठीक है, अभी कौन बताएगा मुझे दोनों, मूसा अलैहिस्सलाम कैसे दिखते थे और ईसा अलैहिस्सलाम कैसे दिखते थे? हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमको कि कौन से नबी कैसे दिखते थे, लेकिन जो मिसकंसेप्शन है क्रिश्चियंस के बीच में, और उन्होंने कैसी उनकी इमेज बना के रखी है ईसा अलैहिस्सलाम की, हमको तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट मिला यहाँ पर, इजंट इट? बताओ मूसा अलैहिस्सलाम कैसे दिखते थे सना? बाजी मूसा अलैहिस्सलाम गुंदमी व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन के थे और उनके बाल घुंघराले थे। वही जगह ईसा अलैहिस्सलाम गोरे रेड थे और उनके सीधे बाल थे। हाँ, और मूसा अलैहिस्सलाम टॉल थे और ईसा अलैहिस्सलाम मीडियम हाइट के थे, मॉडरेट हाइट। ओके, तो ये हमको यहाँ से मिलता है। अब क्या फरमाया? उसी रात मैं हजरत मालिक को भी मिला जो जहन्नम के दारोगा है। तो हजरत मालिक को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल के आए जो जहन्नम के दारोगा है। और किसको देखा पता है आपको? जो वो तमाम आसमानों पर जो जो नबी उनको मिले उन सब से मिले, उसके अलावा एक और शख्स से मिले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एनी गेसेस? नबियों के नाम मत लेना, नबियों के अलावा एक और शख्स से मिले, उसका कोई गैस है आपके पास? नहीं? ट्राई जिया, सना, जिया बोलो जल्दी जल्दी। बाजी एक रिवायत में आया है ना कि मूसा ये फैरो की आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा की जो हेयर ड्रेसर थी उनकी नहीं, वो तो खुशबू आई थी उनको सिर्फ। मालिक का मेरे में बता दिया, मैंने बता दिया। और कोई जो अभी तक मैंने नहीं बताया है? जिया? नहीं? अच्छा, तो सुन लीजिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने दज्जाल को देखा। किसको देखा? दज्जाल को भी देखा। तो ये सब निशानियों में से है जो अल्लाह ने आपको दिखाई। फिर ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मुलाकात से में कोई शक और शुबा न करना। तो उस रात क्या अल्लाह ताला से मुलाकात हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? नहीं हुई थी। सिर्फ आपके हुजूर में अल्लाह ताला के हुजूर में सजदे में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बातचीत हो रही थी, कन्वर्सेशन हो रही थी अल्लाह से, बट अल्लाह ताला का दीदार उस रात नहीं हुआ था। ओके, यहाँ पर हमारे बहुत से मिसकंसेप्शंस क्लियर हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो है अल्लाह से मुलाकात, और उसमें कोई शक हमारे अंदर ना रहे। ओके, चले फिर आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 24, वजअलना, और बनाए हमने। किसने बनाए? हम किसके लिए आया है? अल्लाह ताला की। और बनाए हमने, मिनहुम, उनमें, किन में? किसकी बात हो रही है? बनी इसराइल पर आयत कंप्लीट हुई ना, तो अल्लाह ताला फरमा रहे, और बनाए हमने उनमें यानी बनी इसराइल में, अइम्मतन,
अइम्मतन किसको कहते हैं? अइम्मा किसको कहते हैं खदीजा? फहीमा आंटी? उल्मा इमाम। वेरी गुड। इसमें उलेमा वर्ड नहीं मिलता, इमाम वर्ड मिलता है, इमाम, राइट? तो अल्लाह ताला फरमाते हमने बनी इसराइल में कई इमाम बनाए, ऐसे लीडर्स बनाए, यहदूना वो हिदायत देते थे। तो वो इमाम भी थे, वो इल्म वाले लोग थे, उन्होंने तौरात से इल्म हासिल किया, आलिम बने, इतने उलेमा अल्लाह ने बनाए। और फरमाते अल्लाह ताला कि वो हिदायत देते थे बी अमरीना, हमारे हुक्म के साथ। तौरात में जो हमारे हुक्म थे, डूज एंड डोंट्स एंड लॉज एंड ऑर्डर, उसके हुक्म देते थे ये लोग। लम्मा सबरू, जब उन्होंने सब्र किए। नाउ ये बात समझने की है कि वो हिदायत देते थे और हुक्म देते थे अल्लाह की किताब में से जब उन्होंने सब्र किया। ये क्या है? विल कम टू दैट। वकानू, और थे वो, बी आयातिना, हमारी आयात, युकिनून, हमारी आयात पर वो यकीन रखते थे। तब हमें ये देखना है कि सब्र की बात क्या हो रही है यहाँ पर। सब्र की बात ये हो रही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने बनी इसराइल में ऐसे अइम्मा, ऐसे आलिम, ऐसे कुरान के टीचर्स भेजे। तो वो टीचर्स क्या करते थे? अब नबियों के बाद देखिए मूसा अलैहिस्सलाम भी फौत हुए या नहीं हुए? क्या वो जिंदा है? अभी भी नहीं है। तो उनका जो लाइफ स्पैन था, उन्होंने अपना काम किया, उसके बाद नेक्स्ट नबी, उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे अल्लाह ताला भेजते जाते हैं। और बीच में हमने कई इमाम और उलेमा भी भेजे। तो ये उलेमा क्या करते थे? अल्लाह के ऑर्डर्स को लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन कौन से लोगों तक पहुंचाते थे? जो सब्र से जमे हुए थे। तो सब्र दोनों में चाहिए, टीचर में भी चाहिए और स्टूडेंट में भी चाहिए। एक टीचर कुरान का या अल्लाह की किताब का इल्म, हिदायत नहीं दे सकता अगर उस टीचर में भी सब्र नहीं है। और कोई स्टूडेंट वो भी नॉलेज हासिल नहीं कर सकता जब तक उसमें सब्र नहीं है। ये टीचर और स्टूडेंट और सब्र की मिसाल कौन से पारे में और कौन से सूरा में पढ़ चुके हम? चलिए पारा मत बताइए, सूरा बता दीजिए। सूरह कहफ में मूसा अलैहिस्सलाम तमा जी। वेरी गुड। सूरह कहफ में मूसा अलैहिस्सलाम, खिजर अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर हमें वही मॉडल मिल रहा है कि ये जो अइम्मा थे, ये रसूलों को फॉलो कर रहे थे, अल्लाह के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, सब्र के साथ जमे रहे। हमने उनमें से हिदायत के पेशवा यानी लीडर्स बना दिए, जो अल्लाह के अहकाम लोगों को पहुंचाते हैं और क्या करते हैं? भलाई की तरफ बुलाते हैं, बुराई से रोकते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह के ऑर्डर्स पहुंचाते हैं सब्र के साथ, भलाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। आप मुझे बताइए कि कितने सब्र की जरूरत होती है भलाई की तरफ बुलाने में और बुराई से रोकने में। क्या आप लोग ये काम करते हो? हम सब स्टूडेंट्स हैं ना, तो जब हम पढ़ते हैं तो क्या हम अल्लाह की आयत, नेकी का हुक्म देते, किसी को बुराई से रोकते हैं? क्या अपने घर से शुरुआत की है हमने? तो क्या इसमें इंस्टेंट रिजल्ट्स नजर आते हैं या सब्र की जरूरत होती है? बताइए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। शेयर योर एक्सपीरियंसेस प्लीज। सना? बाजी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बोलते ना सब अपनी चालों में लगे हैं, सबको सीधा करना बहुत मुश्किल है। जस्ट टू गेट देम टू प्रे ऑन टाइम इज सच अ बिग दिस थिंग।
तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड और सब चीजें तो बारीकी में तो जा ही नहीं सकते अभी. वी गेट अ लॉट ऑफ रिबेलियन एट होम. हाँ, वेरी गुड. अम्मी आप बोलेंगे? मैं अंजुम बोल रही हूँ. जब हम हाँ घर बोलिए. ये सब बातें सुनाना चाहते हैं तो बच्चे सुनने राजी नहीं रहते हैं, जल्दी हाँ आते नहीं. उस वक्त हमको बहुत सब्र से रहना पड़ता है कि जरा भी डांट देंगे तो वो हिल जाएंगे. एक बच्ची आती है, बाकी के सब बच्चे अनजान बन के यहाँ हो जाते हैं. वेरी गुड अंजुम, एग्जैक्टली. तो ये आसान काम नहीं है. इसके लिए खुद पहले टीचर को भी जमे रहना होगा, स्टूडेंट को भी. यू हैव टू बी फर्म फुटेड कि सामने से ऑब्जेक्शन तो आएगी, और जब तक ऑब्जेक्शन नहीं आ रही है दैट मीन्स यू आर गोइंग वेरी स्लो. क्या ऐसे डायलॉग मिलते हैं कि अच्छा मम्मा क्या आप नहीं करती थी ऐसा, क्या आपने कोई मस्ती नहीं की है, क्या आप नमाज पढ़ते थे जब मेरे जितने थे. ऐसे जवाब सुनने मिलते हैं ना जरीन? जी बाजी, बहुत मिलते हैं बाजी. है ना? बिल्कुल सही. हाँ, तो ये सारे आएंगे आपको, ऑब्जेक्शंस भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, एक्सक्यूजेस भी आएंगे. मैं तो बहुत माइल्ड बोल रही हूँ. फिर ये भी सुनने मिलता है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. तो जितनी भी ऑपोजिशन होगी होने दो. सबर से क्यों जमे रहना है? क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल कोई गेन नहीं है. मैं तो ये अल्लाह की खातिर कर रही हूँ. लेकिन अगर आपको गुस्सा आ गया, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट, ये पॉइंट नोट कर लीजिए. अगर आपको गुस्सा आया तो समझ लो कि आप ये काम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हो. आप ये पर्सनल अपने गेन के लिए कर, लोग मुझे अच्छा बोले इसीलिए ही कर रहे हो. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आज हमको बहुत बड़ा लेसन यहाँ से लेकर चलना है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लम्मा सबरू, जब उन्होंने सब्र किया. जब तक सब्र नहीं होगा तब तक हम खालिस अल्लाह के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं. और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह, ये अल्लाह तेरा मैसेज है, तेरा कुरान है, तेरा पैगाम है, बंदे भी तेरे ही है. तूने मुझे चुना है कि मैं इन तक पहुंचाऊं, तो अब तू मुझे सब्र भी दे, तू मुझे इस्तकामत भी दे, फर्म फुटेड भी रख. तू मेरी मदद भी फरमा कि मेरी जबान में वो असर हो, ताकि इनको बात समझ में आए. ये मैंने अपने वर्ड्स में बोला. और हम इसी के लिए दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी, कि मेरा भी सीना खोल, इसका भी सीना खोल, मेरी जबान में वो तासीर दे, ताकि मैं जो कह रही हूँ उसको बात समझ आ जाए. और इसमें मेरा कोई पर्सनल फायदा नहीं है अल्लाह, मैं सिर्फ ये तेरे लिए कर रही हूँ. तो फिर गुस्सा आने का सवाल ही नहीं होता. ये एक चीज है गुस्सा कंट्रोल करने के लिए. दूसरी चीज गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्या है, आप बताएंगे मुझे कि क्यों मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए जब मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचा रही हूँ? बोले. एक तो मैंने आपको बता दिया अल्लाह की खातिर है इसलिए नहीं आना चाहिए. दूसरा वजह क्या है कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए? फायजा, खदीजा. अल्लाह की नबी की सुन्नत भी है ना, अल्लाह के नबी ने कभी भी इंतकाम नहीं लिया बल्कि अच्छा जवाब वेरी दिया. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट खदीजा. और कुछ? फायजा, अंजुम. जी बाजी, हेलो अस्सलाम फायजा. वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सलाम. वालेकुम. गुस्सा आए तो हमें ला औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना. अरे बाबा, आप लोग है ना क्वेश्चन ही नहीं समझते हो. मैंने पूछा आपको कि गुस्सा आने पर क्या करना है, वो तो आपको सब मालूम है. मैंने पूछा कि गुस्सा क्यों नहीं करना है. ये शमीम, जैनब, नेहा. बाजी अस्सलाम वालेकुम. गुस्सा इज फ्रॉम द शैतान बिकॉज ईगो से गुस्सा होता है ना. वेरी गुड. ईगो से गुस्सा होता है, शैतान से होता है. नेहा, हु इज दिस नेहा? आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम. नेहा गुप्ता कौन है? बोलो. कनीज शगुफ्ता. यस नेहा.
MashaAllah. Neha is new to the गुस्सा class. जी Yes, tell me. इसलिए नहीं आना चाहिए कि जब हम कुछ अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो इखलास जो है हमारा अल्लाह के लिए होना चाहिए, और That अगर is हम first अपने point I said. Second point. क्योंकि Second. हिदायत जो है वो अल्लाह की तरफ से है। हाँ, very good नेहा। और कोई? शगुफ्ता, कनीज? गुस्सा आने से क्या होता है कि हमको जो एक्चुअल पॉइंट समझानी होती है उसमें भी हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। वेरी तो गुड, वेरी गुड। आप अपने मकसद से हट जाते हो, है ना, आपके मिशन से आप हट जाते हो गुस्से की वजह से। वेरी गुड। चलिए, अभी और नहीं पूछूंगी आपको मैं, और एक सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। एक तो खदीजा ने भी बहुत सही बोली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी गुस्सा करके किसी को नहीं सिखाया। अभी और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जरा अपने आप को रख के देखो उसकी जगह पर, कि क्या मैं अपने माँ के पेट से इतनी अच्छी बन के आई? क्या मैंने भी इतनी गलतियां की हूँ? बहुत देर से आई हूँ इस्लाम में, बहुत देर से हिदायत मिली है, अब तक मैंने भी खूब गलतियां की हूँ और आज भी कर रही हूँ। तो अगर वो बच्चे भी अपना टाइम ले रहे हैं तो उनको उनका टाइम देना पड़ेगा। हम उनकी गर्दन पकड़ के, कॉलर खींच के, डंडे के जोर पे नहीं ला सकते। ला इकराह फिद्दीन। और कुरान हम सुन रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते असर उन पे हो, हमारे फैमिली मेंबर्स पर हो, नॉट पॉसिबल। तो उनको भी ऐसे ही कुरान सुनने का मौका मिलना चाहिए। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरे बच्चों को भी ऐसे ही कुरान सीखने के लिए तूने तौफीक अता कर, उनके लिए ऐसे जरिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा कर कि वो अल्लाह तू उनको सुना दे तेरा कलाम और तू उनको हिदायत दे दे। बिकॉज अब जब आप बोलोगे नहीं सुनेंगे। आई रिमेम्बर व्हेन माय मदर यूज्ड टू टेल मी हाउ आई यूज्ड टू रिबेल। मुझे याद है कि कैसे मैं अपनी माँ को कभी कभी कुछ उल्टा जवाब दे देती थी या नहीं सुनती थी। तो दिस इज वेरी नेचुरल। तो इसमें हमको बहुत सब्र से काम लेना है, एंड इट विल टेक टाइम, बट हमें गिव अप नहीं करना है, साथ में दुआओं का भी सहारा लेना है इंशाल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया वकानु बि आयातिना युकिनून। और ये जो अइम्मा थे, उलेमा थे, लीडर्स थे, टीचर्स थे, वो हमारी आयत पर यकीन रखते थे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि हमें खुद अल्लाह की आयत पर यकीन हो, पुख्ता यकीन, पक्का यकीन, तब हम सामने वाले को उस यकीन के साथ समझा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं इंशाल्लाह। आयत 25, इन्ना बेशक रब्बक, आपका रब। यहाँ पर आप कहाँ नजर आया? रब्बक, ये जो काफ है डंडी वाला, उसका एक्चुअल मीनिंग है तू। क्या मीनिंग होता है? तू, सेकेंड पर्सन सिंगुलर। लेकिन ये आता है कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो हम क्या कहेंगे कि बेशक आपका रब, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपका रब हुआ वही यफसिलु। यफसिलु में क्या वर्ड मिलता है? फैसला। तो वही है आपका रब, वो फैसला करेगा, वो फाइनल डिसीजन, जजमेंट पास करेगा। बैनहुम, बैन यानी बीच में, किसके बीच में? हम, उनके बीच में, उन सब के बीच में वो फैसला करेगा। कब करेगा? यौमल कियामती, यौम यानी दिन, डे, अल कियामा कयामत के दिन अल्लाह फैसला कर देगा। किसमें? फीमा, उसमें, फीमा, उसमें, कानू, जिसमें वो थे, फीही, उसमें, उस मामले में, यख्तलिफून, वो इख्तलाफ करते। इख्तलाफ मीन्स डिस्प्यूट, डिस्प्यूट झगड़ा। जिस मामले में इन लोग का झगड़ा था, डिस्प्यूट था,
तो डिस्प्यूट तो रहेंगे ही, लेकिन इन सब का फैसला अल्लाह ताला कर देंगे कयामत के दिन। कौन से डिस्प्यूट की बात हो रही है? कोई बताएगा मुझे, कौन से इख्तिलाफ की बात हो रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजी नहीं मानते थे, कुरान को नहीं मानते थे। वेरी गुड। और तमाम अल्लाह की आयत और अल्लाह के नबियों का इनकार किया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हर जमाने में। इस जमाने में भी हम देखते हैं कि कार्टून्स बनाए जाते हैं, कुरान जलाए जाते हैं, नाउजुबिल्लाह, इस्लाम को मॉक किया जाता है। तो ये हर जमाने में होता आया है। और लोगों के बीच में इख्तिलाफ सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के बीच ही नहीं, मुसलमानों के बीच भी इख्तिलाफ है कि कोई कहते हैं कि हम सिर्फ मूसा के फॉलोअर्स अलैहिस्सलाम, कोई कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं। फिर क्रिश्चियनिटी में तो कितने सारे फिरके हैं कि कोई 3 खुदा ट्रिनिटी को मानते, कोई सिर्फ जीसस को, कोई सिर्फ मदर मेरी को, नौजुबिल्ला। और ये तो कुछ भी नहीं, हम मुसलमानों में 73 फिरके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं कि 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट्स, ये बहुत नेचुरल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब झगड़े फसाद और डिस्प्यूट का फैसला अल्लाह ताला कयामत के दिन करेंगे। फिर सवाल ये रहा कि हम किसे फॉलो करें, आप और मैं किसे फॉलो करें? तो वो हदीस पूरे हमें ऐसे मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। उन 73 फिरकों में से 72 क्या है खदीजा? ना कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सभी जहन्नम में जाएंगे। हाँ, और सिर्फ एक फिरका होगा जो सही रास्ते पर होगा, और वो किसका होगा खदीजा? एक फिरका जिस पर आपने फरमाया जिस पर मैं और मेरी सहाबा है। वेरी गुड। यानी वो फिरका वो ग्रुप जिस पर मैं और मेरे सहाबा है, वही दीन वाले, वही फिरके वाले लोग कामयाब होंगे। जिस फिरके पर, जिस रास्ते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और आपके सहाबा चले। तो हमें क्या फॉलो करना है फिर? ऑथेंटिक सुन्नते, इस्लाम का तरीका ऑथेंटिक सुन्नतों से फॉलो करना है, सहाबा इकराम को फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया। तो फिर कितनी डरावनी बात है ये, इज़न्ट इट सना? कितनी डरावनी बात है ये कि जी हम बाजी। कौन से फिरके को बिलोंग करते हैं, हमको मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमको तो फिक्र भी नहीं है और ये फिरकेबाजी हमको समझ में भी नहीं आती। तो फिर हमारे लिए इन झंझटों में, झगड़ों में पड़ने से व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? सही रास्ता क्या है फिर? सही रास्ता क्या है? कुरान और सही सुन्नत और हदीस, 3 चीज लेके चलो। इंशाल्लाह कभी भी तुम गलत रास्ते पे नहीं चढ़ोगे, ना गुमराह होगे, ना तुम किसी झगड़े में पड़ोगे। अब ये तो बहुत मुश्किल है, हम कहीं भी जाते तो हमको पहले पूछा जाता है आप कौन से फिरके को बिलोंग करते हो, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय इसके कि हम तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब को फॉलो करते हैं। तो कहते हैं ऐसा नहीं, नाम बताओ, नाम बताओ। अरे भाई, कुरान में तो एक ही नाम मिलता है, मोमिन, मुस्लिम, इसके अलावा तो कोई नाम नहीं मिलता है। ना सुन्नी है, ना शिया है, ना वहाबी है, ना डैश डैश है, ना डैश डैश है, आई डोंट नो। तो फिर हम लोग 24 नंबर। हाँ, 24, 25, 26, आई डोंट अंडरस्टैंड। इसीलिए हमको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को फॉलो करना है इंशाल्लाह। और हमसे कोई झगड़ा करे तो मोस्ट वेलकम। झगड़ा का जवाब हमको झगड़े में नहीं देना है, झगड़े का जवाब मुस्कुरा के देना है। झगड़े का जवाब अगर हमारे पास दलील है तो दलील से देना है, फिर भी ना माने तो झगड़ा छोड़ दो। हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ने वाले के लिए क्या है? जन्नत।
जन्नत का वादा जन्नत है। हाँ, तो अगर हम जानते हैं कि हम सही रास्ते पे है, हक पर है, और फिर भी अगर कोई हमें झुठलाए, ना माने, तो हमें झगड़ा छोड़ देना है। इवन दो यू आर राइट, यू डोंट हैव टू फाइट। व्हाई? इसका जवाब इस आयत में मिल गया, क्योंकि फैसला तो कयामत के दिन होगा। आज आप कितना भी झगड़ोगे उसके साथ, फैसला होगा आज? हो ही नहीं सकता। कोई फैसला कर ही नहीं सकता सिवाय अल्लाह ताला के, वो कयामत के दिन होगा। दैट्स इट। तो फिर हम क्यों झगड़े में पड़े और क्यों गुनाहों में पड़े? क्यों ना हम खामोश रहकर जन्नत में अपने महल बनाते जाए इंशाअल्लाह। कितना अच्छा और आसान रास्ता अल्लाह ने हमको सिखाया। फिर भी हम लोग हमेशा झगड़ों में पड़ते हैं और हम क्या करते हैं? बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और रिश्ते भी खराब करते रहते हैं इंसान, क्योंकि घरों में होते हैं ये झगड़े ज्यादातर। ओके, 26 अवलम। अब अल्लाह ताला एक और क्वेश्चन कर दे हमसे। क्या, वो और, लम नहीं, क्या और नहीं, या हदी हिदायत, क्या और नहीं हिदायत मिली उनको, क्या नहीं है हिदायत, लहुम उनके लिए, कम कितनी ही, अहलकना हलाक की हमने, कितनी ही डिस्ट्रॉय कर दी हमने, मिन कबलिहिम उनसे पहले, बिफोर देम, मिनल कुरूनी क्या डिस्ट्रॉय कर दी, क्या हलाक कर दी, कई बस्तियां, so many societies and townships and cities, तुम उनसे पहले अल्लाह ने डिस्ट्रॉय कर दी। यमशूना वो भी वो चलते हैं, फी मसाकिनिहिम वो चलते हैं उनके घरों में से, यानी उनकी सोसाइटीज, उनके हाउसिंग सोसाइटीज के बीच में से वो चलते हैं आज, जहां पर पहले कोई बस्तियां हुआ करती थी। आज वो बस्तियां हलाक हो चुकी, डिस्ट्रॉय कर दी हमने, अल्लाह ने। इन्ना फी ज़ालिका लआयात, इन्ना बेशक, फी ज़ालिका इस बात में, बेशक इस बात में क्या है, लआयात एक निशानी है। देयर इज वन साइन इन दीज पास्ट हिस्ट्रीज। अब वो तमाम बस्तियां हिस्ट्री बन चुकी है और आज हम देखते हैं रेमिनेंट्स ऑफ दोज सोसाइटीज, जैसे कौम आद, कौम समूद, कौम फिरौन, इजिप्ट के पिरामिड्स। आपने हिस्ट्री के सब मॉन्यूमेंट्स देखे हो, आपने देखे हो हड़प्पा सिविलाइजेशन, उनके कई हजार सालों पहले की बस्तियां जमीन के अंदर से निकली और उनके क्या जबरदस्त आर्किटेक्चर थे, कितना अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड था। अल्लाह ताला फरमाते वो भी बस्तियां थी और वहां लोग रहते थे, हमने उनको हलाक किया। क्यों हलाक किया? क्यों हलाक किया? आगे फरमाया, अफला यस्माउन, क्या, फिर, ला नहीं, या फिर नहीं, यस्माउन वो सुनते, क्या नहीं वो सुनते? क्यों अल्लाह ने वो बस्तियों को बर्बाद किया था? वो अल्लाह की बात नहीं सुनते थे बाजी, रसूलों को झुठलाते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि उन्होंने अल्लाह को झुठलाया, अल्लाह के रसूलों को झुठलाया, अल्लाह ने आज उनका नाम और निशान मिटा दिया, क्योंकि वो गुमराह थे। उनके पास अल्लाह ने अपने मैसेंजर्स भेजे, हिदायत भेजी, लेकिन उन्होंने फिर भी झुठलाया। दे वर वेरी एरोगेंट एंड प्राउड। तो अल्लाह ने आज उनकी सोसाइटीज, उनके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को क्या कर दिया? वीरान कर दिया। और आज वहां वो लोग पहले रहा करते थे, आज तुम लोग वहां रहते हो। अब वो बस्तियां आबाद हो चुकी है, लेकिन क्या तुम भूल गए? क्या तुम उनके किस्से कहानियां नहीं सुनते?
کہ اگر اللہ ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جھٹلانے کی وجہ سے ان کو برباد کر سکتا ہے تو کیا تمہارے لیے کوئی گارنٹی ہے؟ کیا تم سنتے نہیں ان واقعات کو؟ کیا تمہارے کان نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے؟ اللہ نے ان کے بربادی کی نشانیاں تم تک پہنچائی ہے قرآن کے ذریعے بھی، اور آج جا کر وہاں دیکھ بھی سکتے ہو اور ان واقعات کو سنتے بھی ہو۔ پھر بھی اگر عبرت حاصل نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ انڈائریکٹ ہم کو کیا مل گیا ہے؟ انڈائریکٹ الٹیمیٹم دے دی اللہ نے، دھمکی دے دی ہم کو کہ کیا تمہارے کان نہیں ہے؟ کیا تم کو ابھی عبرت نہیں آتی؟ کیا ابھی بھی تم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، اس کی کتاب اور اس کی نشانیوں کو نہیں مانتے؟ تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آپ نے کس کے بارے میں سنا ہے؟ کون سی پرانی قوموں کے بارے میں ہسٹری میں پڑھا ہے؟ قرآن میں تو ہم پڑھ چکے، عاد، سمود، فرعون، صالح علیہ السلام کی، عزیر علیہ السلام جس بستی سے گزرے تھے، ڈیڈ سی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیوں ڈیڈ سی ہے، پھر ہسٹری کی کتابوں میں بھی پڑھ چکے۔ تو مجھے بتائے گا کہ آپ لوگوں نے کون کون سی سنی تھی قرآن میں آنے سے پہلے؟ شمیم؟ باقی ہم نے ہسٹری میں جو ہڑپا کے بارے میں سنی ہے، So much civilization۔ disturbance, Shamim, I cannot hear you. میں انجم ہوں، موہن جدارو، ہڑپا، ہاں، یہ بستیوں کے بارے میں سنا تھا نا ہسٹری تو میں۔ ان کے بارے میں ہسٹری میں آپ نے صرف اتنا ہی سنا تھا نا انجم، کہ بھائی یہ پرانے زمانے میں لوگ یہاں رہا کرتے تھے، ایسے ان کے گھر تھے اینڈ آل۔ تو وہ تو ہم نے ہسٹری کو صرف دیکھا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ بہت پہلے زمانے میں لوگ رہتے تھے، لیکن قرآن اب ہمارے اس دماغ میں اصلیت، ریالٹی چیک دے رہا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہی سارے کے سارے ختم نہیں ہو گئے تھے، بلکہ ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا بیکاز آف دیئر رانگ ڈوئنگس، ان کی نافرمانی اور جھٹلانے کی وجہ سے وہ برباد ہوئے، ہلاک ہوئے۔ تو اب وہ موہنجو دارو یا ہرپا یا آپ کہیں بھی جاؤ تو اب آپ کون سی آنکھوں سے اس کو دیکھو گے؟ تاج محل کو جا کر آپ کون سی آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ عبرت والی بچی۔ اب ہم کو عبرت دے دی اللہ نے، لیسن دے دیا ہے، دھمکی بھی مل گئی ہے۔ تو اب ابھی بھی کیا ہم وہاں جا کر صرف انجوائے کریں گے اور اس کی جھوٹی سچی کہانیاں وہاں کے گائیڈز کے تھرو سنیں گے، یا اللہ کی کہی ہوئی بات پر ہم ایمان لائیں گے، یقین کریں گے اور عبرت لیں گے، اپنے لیے لیسن لیں گے کہ ہم جھٹلا سکتے اللہ کی نشانیوں کو، کبھی بھی نہیں، اور ہم کبھی نافرمانی، کبھی ہم فاسق نہیں بنیں گے، نہ مجرم بنیں گے انشاءاللہ۔ Isn't it, Kanis? What is the lesson that you see now? Learn from here. بولو کون بول رہے؟ باجی ابھی Yes, ہم sir. عبرت نہیں ہے نا، ابھی عبرت کے ساتھ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، ہمارے کان، ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارا دل، دماغ جو ہے اسے کھولنا ہے اللہ کی ہدایت کی طرف، اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے بہت صبر کے ساتھ، نہ کہ بہت ہڑبڑی میں، نہ کہ ریزلٹس کو نظر رکھتے ہوئے۔ ہمیں بس ہدایت دینے والی ذات تو صرف اللہ ہے، ہم کوشش کر رہے اللہ تیری خاطر، تو ہدایت دے دے، میں نے صرف تیرا پیغام پہنچا دیا۔ کیسے پہنچانا ہے؟ احسن طریقے سے، سنت طریقے سے، مسکرا کر۔ جواب سامنے سے جھگڑے والا ہی آئے گا، الٹا جواب آئے گا، تبھی بھی مسکرانے کے لیے ریڈی رہنا ہے، تب ہم یہ کام اللہ کی خاطر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔